So the topic that was presented by Prabha was actually very concerning and something as a since I belong to the same field of education, I have the very same feelings, the very same concerns, and I agree to this that many of the people from the panel has the same concerns over here, and everybody wants to actually add on to ask and to discuss. So considering all of this, what we will do is we will have 2 minute sessions or 2 minute rounds for each and every one of us. Okay, and so we will start with raise your voice, since she is right in front of me, like she's the one who is in the beginning. Okay, and then we will go one by one to each and every one of us. Okay. So raise your voice, please. Any queries or Yes, any? may I speak? Yes, Uh, please. huh. So, Mr. Prabhav has highlighted a very means good topic and good issue, but I want to highlight that this is not only of the high school issues. It is from a very basic level. For example, in the government has focused more on freebies like giving free uniforms, then the free midday meals to increase enrollment. But when I was seeing few days ago, the year-end report of the school, it is actually the dropout rate has increased, and enrollment has been less than at least 2023 also. So why do you think has the error been? Means the intention of the government was to at least on the so part was to that increase the enrollment, giving freebies like midday meal and all. Don't you think rather than doing some real work, they are more busy on this showing social media thing, which is the freebies and all, which at least grab headlines that this government is providing this for the students. That is my question. Uh, thank you, raise your voice, for actually making a very valid point. I think Prabhav has to add on this. Uh, so yes, Prabhav, please. यस यस आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। मैंने जो बोला उस पे एक बहुत अच्छी बात अभी इन्होंने बताई। मिड डे मील्स एंड फ्रीबीज की जो इन्होंने बात की, एक्चुअली एक्चुअली सिस्टम के साथ साथ थोड़ा सा, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा भी है, स्टूडेंट्स का नहीं, बट जो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में है ना, मोस्टली इन रूरल एरियाज, वहां पे मैंने ये ऑब्जर्व किया है पर्सनली भी, इन द डेज ऑफ आवर डिप्लोमा, कि पेरेंट्स की कभी ये क्वेरी नहीं रही कि वाई आवर चिल्ड्रन आर नॉट स्टडिंग, या ये सब्जेक्ट खराब क्यों है, या मार्क्स कम क्यों मिले। ऑल दे वर आस्किंग कि आज खाने में नमक कम क्यों था, एंड आज टाइम पे हमें मिड डे मील का खाना क्यों नहीं मिला, या 3 दिन पहले जो सर खाना था वो खा के हमारा, द प्रॉब्लम इज, या वो स्कॉलरशिप के 10,000 रुपए अभी तक क्यों नहीं आए। तो द प्रॉब्लम इज के इवन पेरेंट्स आर, not all the parents, but a huge number of parents are not concerned about the basic education of their children। और ये इशू इतना, क्योंकि ये सोसाइटी है, एंड इसमें से ही कुछ लोग जाते हैं जो वहां पे सरकार में, चाहे किसी की भी सरकार हो, एंड वो वहां जाने के बाद ये बात समझ रहे हैं कि हमें खुश भी इनको ही करना है। तो हमें ना सिर्फ ये क्वेश्चन सिस्टम से करना है, बल्कि ये क्वेश्चन हमारी सोसाइटी से भी करना है कि व्हाई यू कैन नॉट टॉक about the problems students are facing, why the food or the amount of money you are receiving are your priority, why not education। एक भी स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, उसको आप इग्नोर करके एक दिन का खाना देख रहे हो, वो तो आपको पता भी नहीं है वो किस राशन से बन रहा है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड, के सिस्टम तो फेलियर के बिल्कुल, अगर एक लाइन के नीचे फेलियर है तो उस लाइन पे खड़ी है, अभी नीचे जाने वाली है, बट even from days we are moving towards that line only, we are not getting far from it। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना मेरा रह गया था मेरे बात में, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एंड थैंक्स फॉर रेजिंग दिस पॉइंट।
raise your voice. She actually raised a voice. च- चलता हुआ एकदम सवाल था, right? So yes, thank you again, Prabhu, for making this point, addressing it again. And now we will go to Kalyan, since he has his hand raised, and it is also his own turn for his own 2 minutes. So Kalyan, yes, please. Thank you, Vedant, and thank you so much, Prabha, for this very nice and I would say a very interesting topic. I was really keen on मैं बहुत ही keen था इसके बारे में सुनने के लिए, and that's why I came to this discussion. The first thing what I noticed is you talked a lot about competitive exams and the corruption behind it. So मैंने कुछ points note किए, and I'll just take my 2 minutes now. I'll divide it into one and one. So पहली बात ये है कि एक सिस्टम, खास करके अगर एजुकेशन है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में ये है कि आप एजुकेशन को एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बनाइए। आप एजुकेशन को एक नोबल प्रोफेशन से ज़्यादा एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बनाइए, क्योंकि अगर आप उसको ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन नहीं बनाएंगे तो आपको एजुकेशन में आने वाले जो लोग हैं, एजुकेशन फील्ड में आने वाले, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग एजुकेशन में इसलिए क्योंकि आपका पैशन है ये, बट ये बात भी समझना ज़रूरी है कि पैशन से तो घर नहीं चलता। घर चलने के लिए आपके पास वो ल्यूक्रेसी होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी सम a very important monetary incentive for you to come to the education. इसमें मैं चाइना का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि चाइना में एजुकेशन या टीचर्स आर द हाईएस्ट पेड इन एवरी फील्ड। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर्स। सो डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा जो पे होगा वो उस डॉक्टर को होगा जो एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में पढ़ाएगा, क्योंकि अगर उसको उसको सबसे हाई पे आप रखोगे, देन इट इज क्वाइट सर्टेन कि आपके बैच का जो टॉपर होगा या जो स्किल में सबसे आगे होगा वो उस प्रोफेशन को चूज करेगा। 70% ऑफ द केसेस, या आई वुड से 90% ऑफ द केसेस ऑफ इंडिया में ये हो रहा है कि यार कुछ कुछ हो नहीं रहा है तो चलो टीचर ही करने चले जाते हैं। ऐसा ऐसा आपने देखा रहेगा, ये और ये मैंने भी देखा है, एंड ये सबसीक्वेंटली हो रहा है फॉर द लास्ट आई वुड से 30 to 40 years। और आप उसका असर, जैसे कि आपने अभी कहा प्रभाव, आप उसका असर आपके स्टूडेंट्स के क्वालिटी में भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आपके टीचर्स ही ऐसे लो ग्रेड्स में आते रहेंगे तो उनसे निकलने वाले स्टूडेंट्स क्या होंगे, फिर उनसे कोई टीचर बनेगा। it is a gradual, I would say it is a gradual disintegration that has happened. So अगर आप बात कर रहे हो फेलियर का, तो फेल तो हो ही गए हम, ऐसा तो है नहीं कि हम फेल नहीं हुए। दूसरी बात ये जो आपने बहुत अच्छी कही कि लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज का टीचिंग या एजुकेशन फील्ड के ऊपर एक हस्तक्षेप करना, ये बिल्कुल ही अनफेयर है टू एन एक्सटेंट। अगर आपका स्टूडेंट या टीचर कोई अनस्क्रूपुलस एक्टिविटी करता हुआ आपको मिल जाए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम यू कैन ब्रिंग इन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, बट bringing law enforcement agencies to conduct activities like लाठी चार्ज and all, ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। To put it very bluntly, it was not even happening in the British era, that अगर आप ठीक से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए, आपने भेज दिया लाठी चार्ज के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट, and I will conclude from this, is that 30 seconds more, I'll conclude, is that जो आपने कहा कि एग्जामिनेशन का क्वालिटी, सो ये एग्जामिनेशन का क्वालिटी पिछले 5 से 6 साल में इसलिए बिगड़ा है
क्योंकि हमने सारा का सारा एग्जामिनेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को दे दिया है, एनटीए को। अगर आप if you go ahead, you can read that. And please note that education, as per the constitution, is a state item. It is not a central item. It is a state item. और पहले जब ये स्टेट वाइज अलग अलग अप्रोचेस में होता था, इट वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड. इट वॉज, आई वुड नॉट से इट वॉज परफेक्ट, बट ऐसी ऐसी चीजें नहीं होती थी. तो देयर हैज बीन an unnecessary centralization that has happened in the testing procedure. We can see that in NEET, we can see that in JEE, we can see that in CET, everywhere, and that is one of the reasons. So these are the 3 points I wanted to raise. Thank you so much for allotting me the time. Thank you. So thank you, Zalzala, for actually making very important points, specifically when it comes to the idea of making the job way more lucrative, so that sense of अगर कुछ नहीं बन पाया तो चलो टीचिंग कर लेते ना है, एंड अगर आ भी जाए ये सेंस तो एटलीस्ट देयर विल बी एन सेंस ऑफ एक्सेलिंग दैट आर्ट. बिकॉज यदि टीचर्स ही पैशनेट नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी जो आने वाली जनरेशन है, दैट इज जो बच्चे उनसे सीख के जा रहे हैं, obviously that will be a downgrade, and this is something that we are actually looking दिख रहा है आजकल. So thank you once again. Prabhu, any further things that you would like to add to this, or okay, so there's nothing from Prabhu to add on this. Thanks once again, Kalyan. Now we will go to Karthik since he is on the third. Yes, Karthik. Thank you. In 2 minutes time, I have so many things. Sorry? No, we can exit it. Don't worry. We can? We can exit the timing by 30 seconds. Oh, no. I just want to, I was not saying that. Just, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ ताकि साउंड आ रही है मुझे. हाँ. Thank you so much, everybody. Prabhav, I really liked what you said, and thank you so much, Kalyan, for adding. I want to quickly add, मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ मैं इंडिया के गांव में गया हूँ, वहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत बुरा हाल है. देखिए, मन में आता है कि चाइना कैसा कर रहा है, सबके मन में आता है. मेरे ख्याल से हमसे बेहतर ही कर रहा होगा. आई कैन नॉट इमेजिन हमसे बदतर कर रहा है. मुझे टीचर्स ने कहा है कि वो पिछले 5 साल से 75,000 बेस सैलरी लेती हैं पढ़ाने की. बाय द वे, एक मिथ है कि विलेजेस में टीचर्स को अच्छी सैलरी नहीं मिलती है. उनको 50,000 से 75 हो गया है उनका, एंड दे गेट गुड सैलरी. एंड मैंने पर्सनली देखा है, वो जाते हैं वहाँ पर टिफ़िन खोलते हैं, स्टूडेंट से कहती है अब मेरा खाना गर्म करो. स्टूडेंट्स नो नथिंग. अगर वो 5 साल नहीं पढ़ें उस स्कूल में और 6 महीने मुझसे पढ़ें या प्रभव से पढ़ें या आपसे पढ़ें, दे विल बी द सेम. जो बच्चा 5 साल पढ़ेगा, जो 6 महीने पढ़ेगा, उनका सेम लेवल होगा. आपने कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे. आई एम शॉक्ड कि ज़लज़ला ने कहा कि चाइना में इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन. बिकॉज मुझे इतना पता है कि उनके चार्टर में था दैट टू make the borders stronger, we have to impart education at a very subsidized rate on the border areas of the country. मैं एक बॉर्डर एरिया में रहता हूँ. मेरे से 5 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है जहाँ मैं हूँ अभी. एंड आई कैन अश्योर यू, यहाँ एजुकेशन का बुरा हाल है. टॉकिंग अबाउट सिटी, यहाँ सिटीज़ में भी एजुकेशन का बुरा हाल है. यहाँ पर जो मैं म्यूज़िक टीचर से मिलता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट, दे डोंट नो हाउ टू सिंग. They're teaching students how to sing. They're teaching them rag, and they don't know anything themselves. क्योंकि उन्होंने भी रट्टा मार के या सिर्फ पता नहीं चमचागिरी करके पेपर पास किए. It's a very it's in the system, if you understand what I'm saying. ये सब सिस्टम में चीज़ें आ गई हैं. तो स्टूडेंट्स के पास टीचर्स नहीं है, टीचर्स के पास रोल मॉडल नहीं है. Everybody just passing exams and going on. और एक दूसरी बात मुझे कल्याण ने जो कही थी, देखिए एक ज़माना था कि साइमन गो बैक का नारा लगा था लाला लाजपत राय जी का. अजीब बात है ना, मुझे
मुझे अचानक से एहसास हुआ कि अब क्या हो रहा है। अगर अब लाला जी जिंदा होते, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें, तो शायद वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते और शायद पुलिस उनको डंडा मारती। तो क्या भगत सिंह गलत थे जब वो कहते थे कि ऐसा ना हो कि देश में हम एक दूसरे को खाते रहें? जो ब्रिटिश ने छोड़ा है, हम वो ब्रिटिश को, हम खुद नए ब्रिटिश बन जाएं और एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करें। विंस्टन चर्चिल को हम पसंद नहीं करते, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने भी यही बात कही थी कि इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ रूलिंग। वो एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे। सिंस इट्स एन ओपन फोरम, मेरे मन में अचानक ये बात आ गई कि हम क्या कर रहे हैं। मीडिया या तो दिखा नहीं रहा है पूरी कहानी, या बिल्कुल, एक्सक्यूज मी, देयर समबडी वाज एंटर्ड, मीडिया या तो पूरी कहानी दिखा नहीं रहा है, या लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। जब तक उनकी सैलरी आ रही है, कॉर्पोरेट गोल्स मीट हो रहे हैं, देयर इज नो फ्यूरोर जो होना चाहिए। गवर्नमेंट मे बी शुड कम आउट एंड से वेरी क्लियरली कि देश के पास पैसे नहीं है, वी आर अंडर ग्रेट डेट, वी कांट हैव मोर गवर्नमेंट जॉब्स। तो हमने जो वादे किए थे आपसे, आई डोंट नो, कोई 1 लाख जॉब, 5 लाख जॉब साल का, वो सिर्फ जुमले थे। प्लीज़ फॉरगिव अस, हम लोग वो पूरे नहीं करेंगे। एक बार कह के ख़त्म कर दो, हर साल लोगों का दिल नहीं तोड़ो, क्योंकि बहुत लोग आस लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पे। आई विल स्टॉप हियर एंड प्रभव, आई लुक फॉरवर्ड, अगर आपके पास समथिंग टू से, यू हैव 2 minutes. I like to, yeah. Thank you so much, Vedant. Thank you, Prabhav. थैंक यू कार्तिकेय। एंड समवन इज रेजिंग द हैंड। मैं जल्दी से एक बात बोल दूं, क्योंकि हाँ, अभी कार्तिकेय सर ने जो बोला कि साइमन गो बैक क्या था, एंड ये बिल्कुल अगर आप भगत सिंह के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी देखें तो उसमें एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन चलता है, स्लोगन नहीं चलता, एक मोनोलॉग चलता है उनका, जिसमें भगत सिंह जब एंड कर रहे होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हम अगर इसी तरह से आज़ादी के रास्ते पे चले तो हम गोरे सांपों को भगा देंगे और बूढ़े सांपों को बैठा देंगे। एंड दैट्स व्हाट समवेयर इट इज द ट्रूथ। काले सांप, गोरे सांप जा चुके हैं, कहीं ना कहीं बूढ़े सांप एंटर कर चुके हैं। जो जो प्रेडिक्शन उस समय हुई थी कि हम आजाद भारत में ये सारी चीजों को दूर भगा देंगे, लोग एक दूसरे से जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे, लोग क्या आज नहीं लड़ रहे? लेट्स बी फेयर। हम कितना भी बोल लें कि हमने पेट्रियार्की को खत्म कर दिया है, हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी से बाहर आ चुके हैं, बट रूरल एरियाज में अगर आप जाओ, इवन अर्बन एरियाज में बहुत सारी जगह तो बहुत कुछ करना बाकी है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेल्स को प्रॉब्लम नहीं होता, बट ऑन द सेकंड नोट, जो आज मेन टॉपिक था हमारा, एडुकेशन, आपने बोला अभी कि ऐसा नहीं है कि सैलरीज ज्यादा नहीं है। आई डू अग्री, बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है पता है, 9 से 4 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे तक टीचर्स पहुंच जाते हैं और 4 बजे वहां पे अपना अटेंडेंस सबमिट करके निकल जाते हैं। इस बीच में वो टीचर घर पे रहे, बाजार में रहे, स्कूल में रहे, कहीं भी रहे, स्टूडेंट पर उतना ही फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ 2-4 स्टूडेंट स्कूल में लड़ाई कम करेंगे अगर टीचर वहां मौजूद है, तो एक दूसरे का सर नहीं फोड़ेंगे, कॉपी नहीं फाड़ेंगे। पढ़ाई को लेकर के टीचर्स के प्रेजेंस में 60 to 70% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा अभी कार्तिकेय सर ने कहा कि हम लोगों से 6 महीने पढ़े, उनसे 6 साल पढ़े, एक ही फर्क पड़ेगा, एक ही फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग ज्यादा सिखा देंगे। एटलीस्ट हम लोग एबीसीडी सिखा देंगे, वो तो वो भी नहीं सिखा पाए। आई वॉज शॉक्ड जब मैंने कॉम्पिटिटिव लाइन में आए हुए स्टूडेंट से बात की, जो लोग अब 11th में आए हैं और उन्होंने सोचा कि हम प्रिपरेशन भी करेंगे। मैंने जब उन लोगों से बात की, दे वर अनेबल टू रीड द वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, दे वर अनेबल टू रीड, एंड इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यू हैव टू सॉल्व 25 मार्क्स ऑफ इंग्लिश, और वो वर्ड्स देख के पढ़ नहीं पा रहे, हिंदी की रीडिंग कर रहे हैं तो अटक रहे हैं, ना हिंदी क्लियर ना इंग्लिश क्लियर, एंड स्टेट लैंग्वेज इज हिंदी एंड उर्दू। उर्दू उनको आती नहीं है, ना हिंदी क्लियर ना इंग्लिश क्लियर, मैथ्स बनते नहीं है। इसमें उनका फॉल्ट नहीं है, वो तो बेचारे पढ़ना चाह रहे हैं, बट आज तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं, ना घर वालों ने ना स्कूल वालों ने। और जो लोग वाकई में मेहनत करके इस सिनेरियो के बाद भी पढ़ के निकलते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है, लाठीचार्ज होती है। जैसा भी उन्होंने बताया कि अगर लाला जी आज होते
तो शायद जिस स्टेट में होते वहां के गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते और उनको कह रहे होते कि सो एंड सो गो बैक। मैंने अभी जब कल्याण कल्याण भाई कह रहे थे, मैंने तभी एक छोटा सा कुछ 8-6 लाइन स्टार्ट किया, लिखा, नोट किया। मैंने सोचा कि अगर कोई स्टूडेंट अभी, अगर उसे माइक दे दिया जाए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, तो वो क्या बोलेगा? जो कॉम्पिटिटिव लाइन में है इस सिस्टम को देख के, वो यही बोलेगा। मैं 2 मिनट अगर मुझे मिले तो मैं पढ़ दूं। वो कोई भी स्टूडेंट, मैंने अभी अभी लिखा कि अगर बोलना चाहे तो यही कहेगा। वो पूछते हैं ना कि आपको कैसा लग रहा है, वो कहेगा कि जी चाहता है जला के राख कर दूं डिग्रियां अपनी, लगा दूं आग अपनी सहजी पड़ी फाइलों में, हट जाएगा सिर से पढ़े लिखे होने का ठप्पा, शर्म भी नहीं आएगी मजदूरी करने में, उठाएंगे हम भी बोझा, रास्ते पर हम भी घूमेंगे, ये भी इज्जत का काम है, हम किस्मत को चूमेंगे, उठाकर फेंक दो सारी किताबें, ये सब बेकार है, पढ़ लिख के तो हम बेरोजगार हैं। कभी सिस्टम ने लूट डाला, कभी मेहनत ही हारी, कभी सिस्टम ने लूट डाला, कभी मेहनत ही हारी है, कुर्सियों ने किताबों के मुंह पर ठोकरें मारी है, मेहनत कश का देश सफलता से चूका है, रोज किसी जुगनू ने सूरज पर थूका है, बाजारों से भी बेजार है हम, खुद बदहाली के बाजार हैं, जी हाँ हम बेरोजगार हैं। तो दैट्स द इशू। ये हमेशा हमेशा बेरोजगारी स्टूडेंट की फॉल्ट नहीं है। मैं बेरोजगारी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आप कुछ ना कुछ कीजिए, जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओ भाई, नहीं नहीं, इतना भी अच्छा नहीं लिखा था। नहीं, मैं बेरोजगारी को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को नौकरी देने की जिम्मेवारी सरकार नहीं दी है, लेकिन अगर रेलवेज में 40,000 सीट खाली है तो उसके तो एग्जाम्स लो। जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम ले रहे हो तो फेयरली कराओ, नहीं तो फिर तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। कम से कम जो पढ़ रहा है उसे एग्जाम देने का तो मौका दो। सिलेक्ट नहीं होगा तो बेच लेगा पकौड़े, प्रॉब्लम क्या है? तो ये 2-3 पॉइंट। थैंक यू फॉर द अप्लॉज, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड रेज योर हैंड इज रेजिंग द वॉइस, तो रेज योर वॉइस इज रेजिंग द हैंड। वेदांत, आई जस्ट वांट टू से क्लैप्स मेरी तरफ से, आई डोंट नो कहाँ से क्लैप करते हैं, बट मेरी तरफ से भी क्लैप्स हैं। प्लीज सिखा दो कोई मुझे, चलिए Yes, बाद में। there's a reaction button up there. एक छोटा सा देखो smile वाला. Yes, over there you can, and then you can just do a clap like this. But yes, uh, now thank you, Prabhu, for adding this up, and also for such a beautiful poetry, that too on the spot. And now, since Raise Your Voice had raised her hand and for a very long time, we No, no, will I'm ask sorry, her. but others are pending. Okay, Rashmi, Sneha, and so if they are not, yeah. okay, so what we will do is then, shall we go to Raise Your Voice later? For the Okay, first in the first round, we finish all the speakers. If they don't sure. want to speak, then we go to the next one. Okay. In that case, what we will do is we will go with Hitesha. Do we still have her over here? Because I think she has She has a network issue. network issues. She'll Yes. come back. Hitesha and Advitya. She is still Advitya, not here. I believe Advitya has left. She's not here. So we have Rashmi. So Rashmi, yes, your 2 minutes, and what would you like? People, I'm gonna do for an accented thingy for some reason. If you can hear me. Hello. Yes, Rashmi, you're audible. Okay. So that was for Kartikeya for calling me for an accented friend. And coming back to the topic, I don't have much of an opinion, but I have an observation to share. Yes, So please. there are two observations. One from, like, when I was a kid and when I was in school and when I was a professor. So when we were kids, when we were in college, and whenever our teachers used to, like, scold us, or like you didn't do your homework, or like you did not get things done, our parents didn't
interrupt them. They let them those teaching methods inculcated in us, and they let us have our teachers their own way. So as I grew up, when I was in Mumbai, and there was some reasons like 8 hours of like working on architectural sheets, 4 hours of working on some project, and your professor could just come up and break your model or tear your sheet. It was a standard practice then. But in today, when I became a professor, I had to be cool. I had to keep my calm down even if the thing was wrong, and even if the person is flunking because of donations, because of somebody has political connection, and the student is not up to the mark, even when you have to pass that student. Because why? तुम्हारी job खतरे में है, not because of anything else. And if you raise your voice or if you say something, the parents come at us like as if you have hit that kid, or you murdered them, you shattered their dreams. You haven't done anything like that. You have just given a reality check. You haven't done any of those things. And if I go back to the thing, if my teacher behaved like me, I wouldn't be me today. I wouldn't be able to speak freely. I wouldn't be able to put my thoughts down. Whatever they have taught me, or whatever I learned along the way, they told me to go along. You learn from something. But that is just not there. Children today are very protected in very safe environment. They don't know what's happening beyond those four walls. They are just like, okay, mummy bacha legi, papa bacha lenge. My teacher won't say anything. She has to pass me. Come on, man. My papa has given so much money to college. My papa has given so much money to school. If I am not paying the fees, my teachers won't get paid. So that tendency has become that. So that's an observation, but not like hardcore points like Prabha or all of you have said. So that's the observation I had to share. Thanks Vedant, and thanks a lot Rashmi for raising this issue. ये जितने भी लोग एजुकेशन फील्ड से है ना, जो पढ़ा रहे हैं, वो इसमें रिलेट कर जाएंगे कि जो बड़े स्टूडेंट्स और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 6th-7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ाई को पढ़ाई ही नहीं समझ रहे. दे डू नॉट वांट टू स्टडी. एंड जो रश्मि ने भी कहा कि दे आर सो प्रोटेक्टेड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दे हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ मम्मी बचा लेगी, एज शी सेड. प्रॉब्लम पता है कहाँ है? आज के स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि पढ़ना मुश्किल भी हो सकता है, या पढ़ने के लिए मेहनत भी करनी पड़ सकती है. ये एक साइड है. और दूसरी साइड ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो वाकई पढ़ना जानते हैं, उन्हें ये नहीं पता पढ़ाई कैसी होती है, क्योंकि उनके पास या तो ईदर दे डोंट हैव द रिसोर्सेस, ईदर दे डोंट नो अबाउट इट, एंड दोज हु आर हैविंग ऑल द रिसोर्सेस और इवन somehow they are managed to get those resources, उनको पढ़ाई की पड़ी नहीं है. जैसा वेदांत ने कहा है कि या तो टीचर्स पढ़ाना चाहते तो उनको पढ़ी है. तो प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई है कि स्टूडेंट्स जो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए हैं, इसमें फॉल्ट कहाँ आ रहा है? इसमें भी तो फॉल्ट, जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला, हम लोगों ने डिस्कस किया कि समवेयर पेरेंट्स एंड सोसाइटी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही है कि आई हैव हर्ड कंप्लेंट्स इन द स्कूल कि एक टीचर ने डांट दिया, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, आप ऊंची आवाज में बात मत करो. इट्स लाइक आप सर पे चढ़ जाओ, फिर क्या करे टीचर. तो प्रॉब्लम बच्चों का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को अपब्रिंगिंग ऐसी मिली. हम लोग स्टूडेंट्स थे, हम लोगों के स्कूल टाइम पे हम लोग
ये समझते थे कि टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड टीचर और स्टूडेंट का होता है। अगर सर कह रहे हैं, मैम कह रही है, तो एटलीस्ट सुन ले, माने ना माने तो बात, मानता तो कोई नहीं था, पर सुन लेते थे। पर अभी के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कभी भी सुना नहीं। आप नोटिस करना, वेदांत शायद जुड़े हुए हैं शिक्षा से, आप नोटिस करना, आप शायद अच्छे टीचर हो, लेकिन जो टीचर्स पढ़ाते अच्छा है बट बच्चों से उतना कनेक्टेड नहीं है, वो जब बोल रहे होते हैं ना, स्टूडेंट्स सुन नहीं रहे होते, वो बस वेट कर रहे होते कि ये चुप हो तो मैं अपना पॉइंट रख दूं। दिस इज द इशू। टीचर बोल रहे हैं, टीचर वो भाई तुमको जो बता रहा है वो इंसान तुमसे 4 डिकेड्स बड़ा है। तुमको ये तो पता होना चाहिए कि एटलीस्ट उसने तुमसे ज्यादा दुनिया तो देखी रखी होगी। तुम कार से आते हो, वो पैदल आ रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि उसे नहीं मालूम है कुछ। तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट्स को अवगत कराने की जरूरत है कि टीचिंग क्या है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ नॉट कल्चर देन मे बी द अपब्रिंगिंग। तो आई डू अग्री विथ रश्मि कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड शी इज रेजिंग हर हैंड अगेन, कुछ जरूर इंटरेस्टिंग बात बोलेगी, तो मैं यही कंक्लूड करता हूँ कि उन लोगों को, स्टूडेंट्स को अवगत कराने की जरूरत है, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज सीनियर्स, कि भाई पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड रिस्पेक्ट देना सीखो, लोगों से बात करना सीखो, बात सुनना सीखो। दैट्स इट। लेट्स Uh, so yes, Rashmi, you wanted to add Uh, something. just Vedant, Sneha is Yes, pending. If Sneha and if Sneha does not want to speak, then we can move then we on will to get back to uh, Rashmi. Okay, sure. and we'll go back and we'll keep a time. We'll have to we have to keep a Ah, time. yes. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay, sure. Uh, so Sneha, do you want to add anything to this? Hello, good evening, everyone. Actually, आज के दिन आई एम जस्ट अ लिसनर एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप कुछ लोग सर्दियों में अपनी रजाई छोड़ के यहाँ बैठ के इतने इम्पोर्टेंट चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस बट श्योरली नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई टू कंक्लूड समथिंग थैंक यू सो मच Thank you, Sneha. Um, so we can come back to Rashmi in that case. Then there is one more I think thing I about think Ray I gadgets. think We were, I think Raise Your Voice had also raised her hand. oh Yeah. yes, So So yes, wouldn't so it we be, just yeah. yes, yes. so She Vedant, had, she had. we We'll can go back to just two go back minutes. to her and Yeah. then I'll come back. Yeah. Okay, sure. Okay, so my point was that that this the teachers means there are many some cases I have seen where the teachers means for the government jobs, government schools, they are paying some brokers also money ki just set our son or daughter in the school for this years. So that is also going on one hand. Then, Ms. Rasmi has raised a very important point of harassment of the teachers. In India, there is no such data or documentary which is showing that of such cases. But there was a documentary of Korea that their teachers are committing suicide due to the harassment of the teachers by the parents, and they are getting means for scolding also they are getting reported, and their careers are means tarnished. So means I don't think this is a cultural thing specific to India. It is mostly means a worldwide thing. And lastly, I want to say that education was supposed to give us employment or at least help us make our livelihood. But the current state is that education has made us someone that means we are ready to kill other person to get what we want. For example, if we see on Twitter also, there are many people you will find who are highly educated but are unemployed, and they write means so rubbish things. And you will find some IT sales also. They means that is their job,
but the wording they use. So this is also one indicator means how the culture has deteriorated since once education was supposed to be giving respect. Now it is like how ill-mannered you can be. That is, I feel where we are standing. That's it. Okay, these were some very interesting points. True, right? Specifically when it comes to the data for the other nations, like even Japan and Korea, they do have this data. And also the things have been reported where when teachers have been harassed just for making a comment that would have rectified the student, and they then take extreme steps. But in case of India, do we have such records? And it's quite interesting कि हम बातें करते हैं specifically teachers within the staff room, or teachers when they meet other teachers here and there, like me and Prabhu right now. If we have a talk, we will have this thing, right? But records नहीं है. Or if we do have, I am not aware. I think Raise Your Voice can actually enlighten us. Are there any records for this? She is actually adding up some YouTube links on this. So once after the talks, we will Yeah. go through this links and actually try to discuss this once again some other day. But very So interesting points. Thank yeah. you, Raise Your Voice. Thank you. Uh, So so we can go for 2 minutes for Prabhav's answer, and if Prabhav has nothing to say, then we can go to Kalyan, Rashmi, and Sneha. yes, please. So Prabhu says we can go ahead. So we can go again back to uh, Kalyan once again in that case, because he has many things to add on. I'll be happy if Rashmi goes first. Then I'll go. No problem. Okay, if that is okay with Rashmi. Rashmi? Okay, so like what Raise Your Voice said, so something like that. One of my friend's kid is in kindergarten at Podar in Mumbai, and teacher is not supposed to shout, even if the kid misbehaves, even if he does anything to his fellow benchmate or like his friend or whatever. They're not supposed to shout. They're supposed to make themselves calm, and even if they throw things at teacher, even if they do anything crazy, teacher is not allowed to say a single thing. This is a kindergarten. Then the next point, coming to when children grows a bit young, they have given gadgets. We were thrilled to know about, what happens in next chapter. We used to read. People nowadays, while they are in class, they just Google up stuff. So before teacher is able to explain, स्टूडेंट इज लाइक मुझे तो ये सब पता है, गूगल बता देगा, बड़ा ओके मुझे क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ वैसे ही काम में नहीं आने वाला, बिकॉज दैट इज व्हाट दे हैव बीन टोल्ड, दैट इज दे आर सीइंग. And I guess that's one more issue, that phone should be out of the class. Phone should not be like, be at any grade here, first, second, third, fourth, 10, 12, even for graduation for that matter, because you're just googling, you're doing Pinterest, you're doing n number of things which are like, not giving your own creativity, or that is not like, making you learn stuff, that is just, easily available material. So that's about it. Those were the two things I wanted to add on. Thank you, Rashmi, for even adding this point. Prabhu, do you want to add something to this? Yes. First of all, that's a very good issue raised by Rashmi. Ke phones should be kept out from the class. Phone, what I believe, should be kept away from the reach of the children. मैं पता है आज से 10-15 दिन पहले तक इस बात के बहुत फेवर में था कि अरे फोन चलाने में क्या प्रॉब्लम, बट दिस इज
actually a very important issue raised by Rashmi, and which we have realized so many days ago कि जो भी टीचर बता रहे हैं, either they are googling it, and you know what the problem is? Social media और चैट जीपीटी और मे बी गूगल, यूट्यूब, ये क्रिएटिविटी को छीनते जा रहे हैं बच्चों से। एक मैसेज लिखना होता था पहले, हमें न्यू ईयर का, हम लोग याद है वो 1 रुपए 2 रुपए वाले कार्ड्स खरीदते थे और हम उस पर लिखते थे। और अभी क्या करते हैं ये लोग, 4 लाइन के मैसेजेस खुद से टाइप नहीं कर सकते, वो चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। अगर 5 साल 6 साल के उम्र में आप सिर्फ कॉपी और पेस्ट सीख रहे हैं, कंसर्निंग कि वेयर द लाइन इज गोइंग। और इसीलिए जब भी टीचर कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो आपको लगता है ये तो मैं ऑलरेडी कर लूंगा, आप नहीं कर लोगे, ये आपका फोन कर लेगा। एंड ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट गूगलिंग और डाउनलोडिंग फ्रॉम चैट जीपीटी, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर ओन पाथ। और वो आपको चैट जीपीटी नहीं सिखाएगा, वो आपको गूगल नहीं सिखाएगा। ये चीज बच्चों के जहन में नहीं बैठ रही है ये चीज। तो दैट्स अ इशू, दैट्स एन इशू, एंड दैट्स व्हाई बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ व्हाट रश्मि सेड, फोन शुड बी अवे फ्रॉम देम। Thank you, Prabhav, for adding it up. Now, we'll start with the second round where, yes, it is Kalyan's turn, and Kalyan, 2 minutes. Not much. Thank you so much. I think one thing we need to ask at the core of this is our educations. The education that we are giving is it even relevant? That is most important thing. Yeah, we don't have, like, I have stopped taking freshers in my company now. I'll be very honest. I used to take around 30% freshers long back, maybe from say from around 2009, when we were under economic recession. At that time, I am saying 2009 to maybe to 2017 18, I used to take a lot of freshers in my team, um, from colleges, campus interviews and all. Today I don't find them relevant anymore. I mean, the new freshers, so I've stopped taking them, to be very honest. I've So that is one thing. Another thing is, हाँ, नौकरी नहीं है प्रभाव, क्योंकि it's not about unemployment. They are not employable. So I mean, how can I risk so much of money in for a person who knows nothing? So that's very clear. सेकंड पार्ट जो मैंने चैट में भी कहा था, कि आपने कहा था प्रभव के वो गाड़ी में आ रहा है और टीचर पैदल आ रहा है, लेकिन टीचर को ज्यादा, ऑफ कोर्स ज्यादा पता है उसको। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि बच्चों को, पीपल, द किड्स नो द प्राइस ऑफ थिंग्स। उनको ये पता है कि मैं 15 लाख की गाड़ी में या 50 लाख की गाड़ी में हूँ, उनको प्राइस टैग्स बहुत पता है आजकल, बट दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ द थिंग्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू which we need to understand. कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर एक मारुति कार भी खरीदता है, एक एस्प्रेसो भी खरीदता है, वो उसके लिए इट इज लाइक एन एरोप्लेन फॉर हिम। और एक मुकेश अंबानी अगर एक एरोप्लेन भी खरीदता है तो इट्स लाइक अ व्हीकल फॉर हिम। सो इट्स अबाउट द वैल्यू। सो वैल्यू इज नॉट अंडरस्टूड। एंड अनदर थिंग इज दैट हर एक बच्चे के जबान में ये हो गया है कि मेरा बाप ये है, मेरी माँ ये है। जो चीज मैंने चैट में कहा था, आई थिंक मैं वापस दोहराता हूँ कि बाप का जो परिचय है वो आपका आदर्श बने। योर डैड शुड बी योर इंस्पिरेशन, यू शुड नॉट बी योर ईगो, यू शुड नॉट बी योर अहंकार। आज हो क्या रहा है कि अगर मेरा बाप कमिश्नर है तो ये मेरा अहंकार है। हालांकि ये नहीं कि अगर मेरा बाप कमिश्नर है तो मैं उससे इंस्पायर हूं कि मैं भी इतनी मेहनत करूं कि मैं उससे भी ज्यादा ऊपर पहुंचूं, राइट? तो वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उसके पावर को यूज कर रहा हूं।
मैं उसके लाइफ स्ट्रगल से इंस्पायर नहीं हो रहा हूँ, मैं इससे इंस्पायर हो रहा हूँ कि मेरा बाप कलेक्टर है, तो चलो भाई वो जो कर रहा है, कलेक्टर के बेटे को आजकल कलेक्टर से भी ज्यादा पावर है, ये हो गया। सो अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन रहेगा वो, तो आप कितना भी कुछ कर ले, आप मतलब मैं आपको बोला, प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। प्रेशर तो टीचर्स पे, सिस्टम से ज्यादा तो ये लोग ही बनाएंगे आप पे, क्योंकि आप अब अनदर थिंग ये है, एक और, आई मीन शॉर्ट पॉइंट दैट यू नो, प्रीवियसली जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल वाज सपोज टू बी एन इंस्टीट्यूशन। ओके, एक इंस्टीट्यूशन था स्कूल के, जहां पे हम जाके हम हमारे लाइफ को बना दे, वी मोल्ड आवर लाइव्स ओवर देयर। टुडे स्कूल हैज बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया। और यहाँ पे अब बहुत सिंपल सा चीज है कि इफ थिंग्स बिकम ट्रांजैक्शनल, तो अगर मैं कुछ पैसे दे रहा हूं कुछ चीज करने के लिए, तो मैं तो डिमांड करूंगा एज अ पेरेंट। अगर अगर मैं महीने के मान लीजिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ स्कूल को, या फिर साल के 5 लाख रुपए दे रहा हूँ स्कूल को, सो आई विल डिमांड दैट कि बॉस, आई एम पेइंग यू 5 लाख का, मैं आपको 5 लाख दे रहा हूँ। जो चीज 5,000 में सिखाई जा सकती है, 50,000 में सिखाई, उसके मैं 5 लाख दे रहा हूँ, तो obviously I will have a demand from my end. So you have, I mean, the schools have become a shop. So on one side, the private education has become like a shopping complex, and the government education is irrelevant. ठीक है, तो अगर मुझे किसी को एम्प्लॉय करना भी हो, मैं आपको बोलता हूँ कि in another 3 years I will not be able to. I'm still not taking any freshers, but in another 3 years, we did an analysis in our boardroom, and we saw that we will not be able to employ any person in India, and it is very apparent, and that is one of the reasons that many of our operations are going to shift to Vietnam. They're going to shift to Shanghai. They're going to shift to, this is probably after like इतने साल इधर उधर जाने के बाद, this is the first time that I visited China for that reason. So yeah, so we are going to shift. So yeah, that's the thing, and people should be scared. As I said, they should be scared. उनको नहीं मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप ये सोचिए इन्फोसिस कैसा सोच रहा है, विप्रो कैसा सोच रहा है, L&T कैसा सोच रहा है, ये सोच। थैंक यू। Thank you, Kalyan, for actually placing this very one important thing, that is opportunity versus ability. तो हमारे पास जॉब्स की कमी है, या हमारे पास काबिल कैंडिडेट्स। सो प्रभव, you want to add on this, right? Please go ahead. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 90% बातों से अग्री कर रहा हूँ क्या बोल रहे हैं कल्याण भाई, बट व्हाट ही सेड के जॉब नहीं है क्योंकि लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं। ये बात विथ ड्यू रिस्पेक्ट अधूरी बात है। लोग एम्प्लॉय करने लायक नहीं है, वो लोग भी जॉब मांग रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास जॉब की कमी है। ये एक प्रॉब्लम है इस देश के अंदर, ये सिक्के का एक पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि जो लोग एक्चुअली एम्प्लॉयबल हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है तो पेपर्स लीक हो जा रहे हैं और सीट्स खाली दिख रही है लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही है, और जब वो अपनी बात रखते हैं तो उन पर लाठियां चल जाती है। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। तो ये जो हमारे सिस्टम का सिक्का है ना, ये दोनों तरफ से खोटा है। एक तरफ से जो एम्प्लॉयबल नहीं है वो जॉब मांग के सिस्टम में खोट इशू ला रहे हैं, दूसरी तरफ से जो सही लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, दोनों प्रॉब्लम्स है। लेकिन somewhere there's a problem on both the side. सेकेंड थिंग, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि
बाप का परिचय आदर्श होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये नोटेबल पॉइंट है कि कलेक्टर का बेटा ये नहीं सोचता है कि मैं भी कलेक्टर बनूं या मैं कलेक्टर से और कुछ ऊंचा बनूं। वो ये सोचता है कि मेरा बाप कलेक्टर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी को भी तो ध्यान देने की जरूरत है। और उस बच्चे को अभी नहीं पता है कि कलेक्टर क्या होता है, उसे बस ये लगता है मेरे पापा बहुत बड़े इंसान है, एक बीस। तो इट्स एज अ पेरेंट उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसे समझाए कि बेटा कलेक्टर के ये पावर्स हैं, इस तरह से पहुंचा जा सकता है, मेहनत करोगे तो तुम भी एक दिन यहाँ तक बैठोगे, यहाँ पहुंचोगे। बट वॉट दे आर टीचिंग कि आराम से स्कूल जाओ, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम देख लेंगे। दैट्स द इशू। रियल इशू यहाँ खड़ा होता है कि हम शुरू से ही क्या शिक्षा देते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स जो थे मैं ऐड करना चाहता था। एक वो कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, वो मेरा इशू था। मेरा इशू ये नहीं था कि जो एम्प्लॉयबल नहीं है उनको भी जॉब दे। मैंने पहले ही कहा कि मत दो नौकरी, लेकिन जितना सीट खाली है वो तो भरोगे, वो तो भरोगे ना आप अगर ऐसा सोचोगे कि नहीं नहीं, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, नहीं, नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। किसी ना किसी को तो करना है ना। आप एग्जाम ले रहे हो तो फेयरली लो ना, वरना फिर बोल दो कि हम नहीं लेंगे एग्जाम, आप लोग प्राइवेट नौकरी की तरफ जाओ। एग्जाम लेने में फॉल्ट क्यों हो रहा है? दैट वाज माय पॉइंट। गवर्नमेंट खुद ही बोलती है ना हम 2 लाख सरकारी रोजगार देंगे, हम 10 लाख देंगे। या तो आप बोल दीजिए कि नहीं हम नहीं देंगे, आप लोग करो प्राइवेट नौकरी, करो करो प्राइवेटाइजेशन कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले जाएंगे उस तरफ। बट जो सिस्टम में फॉल्ट है उस पर तो बोलना होगा। एंड दैट वाज माय पॉइंट। Thank you very much once again, Prabha, for putting this point where there is no clarity from any sides कि भाई अपॉर्चुनिटीज है, नहीं है, रिसोर्सेज है, नहीं, नहीं है, and many other stuff, right? And this is something that is creating a confusion. And then वो confused state में एक यंगस्टर जब अपनी एजुकेशन पूरी करता है तो वो बेचारा कंफ्यूज है कि भाई कहाँ जाओ, गवर्नमेंट में जाओ तो वहाँ पे मेरे साथ विल आई बी इवन वैलिड और वायबल, या तो फिर मैं कॉर्पोरेट में चले जाऊँ जहाँ पे मुझे पेमेंट अच्छा मिलेगा लेकिन शायद से पिस्सा आ जाऊंगा. So even that is an aspect, right? Now, I think Kalyan has many things to add, but Kalyan, yeah. if you permit us, we okay. Thank you. So because we have Karthik next. No, I'd because I think the 2 minute time limit was not being kept, so we have crossed the time. So Yes. I'll give my time to I'll abandon what I had to say, and I believe Quarantine had something to say. She has raised her hand, or he has raised his Yes, hand. I don't know exactly. the gender of Quarantine. Uh, Just want to say I don't want to be in quarantine again. So just want to make sure this is very clear. Quarantine. so quarantine, since it's your, I do not know even if I'm pronouncing it correctly. So since this is your first question, I will actually give you 3 minutes to add on to this. Oh, okay. Thank you so much to give me an opportunity to speak. I'm a male actually. So, as Prabhav said that, नाम भी बता दो भाई। okay, my name is Om. Hello. So, as Prabhav said that government don't have jobs. Actually, government do have jobs. There are so many. And about the salary or perks which government officer get, about if we take an example of police services. अगर हम पुलिस सर्विसेज का एग्जाम्पल ले तो उसमें पहले लाइक बिफोर 2014 और बिफोर 2000 their salary was very less, like as we spend in day to day life, like 100, 200, 300, 400. And the thing is गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की 2014 के बाद, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की स्टॉक मार्केट में भी की. बट जॉब्स के लिए लोग कैपेबल ही नहीं है, according to me. Okay, that's my point of view. They are not capable, and like as Prabhu said that students are even not able to read Hindi and English. अब जिन्हें हिंदी इंग्लिश भी नहीं आ रही है वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना, लाइक फॉर एग्जांपल वी टेक यूपीएससी, बहुत कम रेशियो है. बट इन 90s
यूपीएससी वाज लाइक वेरी इजी टू क्लियर, कोई भी कर 10th पास 4th पास यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस क्लियर कर सकते थे। बट एजुकेशन सिस्टम में चेंज इतना आया, बहुत मतलब ज़्यादा चेंज आया, एंड उसकी वजह से लाइक पहले अगर हम हमारे मम्मी पापा के किस्से सुने, या फिर आप एक्सपीरियंस लोगे, आप अगर हम आपके किस्से सुने, तो टीचर थोड़ा बहुत पनिश करते ही थे। बट अभी ना बच्चे पनिश हो रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है। सो दैट्स लाइक स्टूडेंट्स आर लाइक चिल. Students are really chilled. They don't have a seriousness of board exams. They don't even have a seriousness of any competitive exams. So government support कर रही है. I mean, like if I talk about like लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में, like थे बीजेपी के बारे में अगर बोले, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को बोले, अगर वो किसी बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, किसी बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, तो वो लोग बोलते हैं कि वो उनके चापलूसी कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट रियल. अगर वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कहाँ से, मतलब अगर वो अपनी इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, अपनी इंडस्ट्री जॉब्स बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जॉब्स बढ़ेगी. और अगर लेकिन एज अ पीयर प्रेशर, उन पीयर प्रेशर नहीं, सॉरी, एज अ प्रेशर, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, नहीं खुल के सपोर्ट नहीं कर पाते. सो उन्हें वो एक लिमिटेड, उनको सब सोचना, मतलब गवर्नमेंट को एग्जैक्टली उनको सब संभाल के सब सोच के ही चलना पड़ता है. एंड या पीपल आर डू कैपेबल, जो कैपेबल भी है. एंड लाइक बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें पता भी नहीं हो सकती अभी तक, जो इस बात की हम तक इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकती. ओके, माय टाइम इज अप, एंड थैंक यू सो मच. Uh, thank you very much, Om, for putting 2 points. One is for sure that either we must know that candidates capable है या नहीं, एंड दूसरा कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस है या नहीं. तो अभी भी ये बात पे क्लैरिटी नहीं है. या फिर ये ऐसा हो सकता है कि देर आर पीपल आर केपेबल, there are resources available, but it is just that we do not want to take responsibilities to put things in order. It could be, I mean, Prabhu, can you add on this? First of all, a very good point raised by Om, and I want to say welcome to our meeting, क्योंकि आप पहली बार आए हैं. एक्चुअली ओम ने जो पॉइंट रखा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे था, और मेरा जो पॉइंट था वो स्पेसिफिकली मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टेट गवर्नमेंट पे था. और इसलिए हम दोनों के पॉइंट्स जो हैं अलग अलग हो गए. तो एज वो स्टार्टिंग में नहीं थे, तो शायद उन्होंने उनको ये बात पता नहीं थी कि मैं स्पेसिफिकली एक स्टेट की बात कर रहा था, और वो बात कर रहे थे 2014 यानी कि स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बट अगर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाह रहे तो उनको कौन पढ़ाएगा? हम और आप पढ़ाएंगे. ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. दूसरी बात, गवर्नमेंट को सब कुछ सोच के करना पड़ता है, बिल्कुल. फ्रॉम 2020 टू 2023 मैं भी चाइल्ड लाइन से जुड़ा हुआ रहा. आई वॉज वॉलंटियर. मुझे पता था कि स्टूडेंट्स तक पहुंचने समय हमें क्या गाइडलाइंस दी जाती है, क्या ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि किस कारण से काम सही से नहीं हो रहा है. प्रॉब्लम पता है क्या है कि बहुत सारी चीजें सोच के करनी पड़ती है, आई डू अग्री. बट अगर इसको एक एक्सक्यूज बना करके लोग काम करना कम कर दें, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल पे मैं बाद में आऊंगा, कि अगर आप इसको एक एक्सक्यूज बना लो कि हमें तो वोट ही इस चीज पे मिलेगा, तो फिर तो होने से रहा सुधार. उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर हम ये मेंटेलिटी पाल लें कि हम तो वोट ही इस चीज पे देंगे, हम तो शिक्षा पे वोट ही नहीं देंगे, तो ये भी, दिस इज बिगर इशू. एंड ये जो कल्याण भाई ने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि स्ट्रेंथ नहीं पहचान पा रहे स्टूडेंट्स के टीचर्स, स्ट्रेंथ पहचान पा भी रहे ना, तो टीचर्स के हाथ बहुत बंधे हुए हैं. टीचर्स के हाथ बहुत बंधे हुए. टीचर्स ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते हो. टीचर्स, इवन यू सी जो अभी हो रहा है, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो सैलरी इंक्रीज की है, अच्छी बात है, सैलरी इंक्रीज की है. पे स्केल क्यों चेंज हो गया टीचर्स का?
इवन सेंट्रल में एंड स्टेट्स में टीचर्स का पे स्केल क्यों चेंज हो गया? हर जगह सबसे ज्यादा लठ किसको झेलना पड़ रहा है? एडुकेशन डिपार्टमेंट को। अभी एक सो कॉल्ड वेव आया बिहार के अंदर में, जहां शिक्षा विभाग में बहुत सारी नियुक्तियां हुई। ठीक है, हुई, अच्छी बात है। आपने सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए लोगों को कहा कि आप अब हमारे स्टेट का एग्जाम दो, फिर हम आपको जॉब देंगे। हुआ, 3 टीआर हुए उसके। जब सारे क्लियर होने लगे, तब अब कह रहे हैं कि अब हम पे स्केल चेंज कर देंगे, एंड अब 4th टीआर रोक दिया। तो दोज हु डोंट नो अबाउट 4th टीआर मतलब टर्म, चौथी बार वो एग्जाम। तो टीचर्स आर बीइंग ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ये भी एक इशू है। ठीक कह रहे कल्याण भाई। बट द थिंग इज, गवर्नमेंट को बहुत कुछ सोच के करना पड़ रहा है, या फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि लोग कैपेबल ही नहीं है। ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि जो जॉब मांग रहा है वो इंसान कैपेबल है या नहीं? एग्जाम्स डिसाइड करेंगे या कोई बॉडी डिसाइड करेगी? तो आप लो एग्जाम, जो लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो कैपेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। तो 10 सेकेंड्स। तो ओवरऑल ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम है तो एक्सक्यूजेस की जगह सॉल्यूशन पे वर्क करने में क्या बुराई है? अगर लोग कैपेबल नहीं है तो वो एग्जाम से पता चल जाएगा। एंड अगेन, वो स्टूडेंट्स को आप मौका ही नहीं दोगे तो फिर दिखेगा ही नहीं। ये बेसिक बेसिक बात थी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट पे बात कर रहा हूँ। Thank you, Prabhu, for addressing everything one by one. With this, now we have to go to Kartikeya once again, because No, I'll again because of we have Rashmi as a second speaker, and we have a Second speaker. discussion. We have a discussion round. yes, I will exactly. put in my points there, मैं and 10 सेकंड और आ जाऊं? Sure, yeah, sure. After Prabhav speaks, maybe you can ask, raise your voice, and Sneha and Yes. Korati, everybody, Just for just 30 seconds of points. No discussion, just keep your points. Okay, 30 I'm seconds just each. I'll just take 20 seconds. मैं ये कह रहा था कि मैंने सारे पॉइंट्स स्टेट गवर्नमेंट पे रख दिए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे मैं कुछ बोला नहीं, एज टाइम वाज अप। मैं सिर्फ 2 छोटे छोटे पॉइंट्स रख देता हूँ। पहली बात, शिक्षा को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि बहुत सारी चीजें टैक्स फ्री हैं? There's still 12% GST on notebook and alcohol is tax free. Second thing, अभी तक अभी अभी तक इस देश में एक अल्कोहल इज नॉट टैक्स फ्री, प्लीज प्लीज प्लीज, अल्कोहल इज नॉट टैक्स फ्री। जीएसटी फ्री सर। नहीं, जीएसटी है अल्कोहल में, 28% बहुत सारे स्टेट्स में नहीं। बहुत सारे जीएसटी। आई पे, सो आई नो। सॉरी टू ऐसा मत बोलो यार। अरे दर्द। चलो ठीक है। हमारे स्टेट में तो बैन है, छोड़ दो उसको। चलो, बट स्टिल एडुकेशन बजट जो है वो अभी तक प्रॉपरली हमारे सामने नहीं रखा गया है। तो जितना उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एंड सेकंड थिंग, अगर नोटबुक पे, स्कूल बुक्स पे, इन सब पर जीएसटी बढ़ जाएगी तो शिक्षा पे 18% जीएसटी है। तो ये एक चीज है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। और बहुत सारी अनयूजुअल चीज को आप टैक्स फ्री कर सकते हो, तो एडुकेशन पर थोड़ा सा रहम खा लो। और क्या, कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पे घटा दिया, एडुकेशन पे भी घटा दो, और अल्कोहल पे भी कर दो, कुछ लोग खुश हो जाएंगे। Thank you, Prabhu, and that ends your 30 seconds. Now we will go to raise your voice first. No, we have Rashmi. So Rashmi wanted to add again the same thing. Just 30 seconds each, please. 30 seconds each. Yes. No, I don't have anything. Me too, no points. Great. Then we will ask Sneha once. Sneha, do you have anything to add? 30 seconds. Nothing much actually. Thanks for asking. Om, 30 seconds. Anything to add from your side? Thank you. Actually, as Prabhu said, that मुझे पता नहीं था कि कौन सा गवर्नमेंट कौन चल रहा है, but as I'm from Maharashtra, so Maharashtra government is really doing well. Apart from some, हर एक सब में कुछ ना कुछ होता ही है, बट या मतलब एजुकेशन को टैक्स फ्री करना चाहिए। ये प्रभु का पॉइंट ये सही था। आई एग्री ऑन दैट। Thank you.
Thank you once again. Jai Maharashtra. Then we have okay. So raise your voice. Do you want to add something to 30 No seconds? points. No No. points. Okay, thank you. But yes, there's something that you said on NEP which is nowhere to be found. That is something that we can discuss, but that will take another session. I think that's a national education policy, Yes, which is wonderful on paper, as is the uh, this idea of having international institutions in India. One is very close to me. I mean, in Jammu and Kashmir, you have IIMs and IITs, but the students are claiming they don't have teachers. Either the students are lying, or might be the students are the worst people I've ever met because they're lying about such a serious thing, or maybe they're speaking the truth. And there's a dearth of infrastructure and proper teachers. I don't know what's happening, but there's a problem happening. I just thought I'll update you with no, that. no, no, that's true, Karthik, because when it comes to NEP, as you said, it looks amazing on the paper, but it's a joke in practical. Okay, on ground वो joke चल रहा है वहाँ पे, which as I said, it will take another session to discuss on that as well. So with that, since there are no other add-ons to be asked or any other things to be discussed, we conclude this topic for today, and we can move towards the next topic and towards our next speaker. So Karthikeya, all up to you. I'll just update. Rashmi will be speaking for only a couple of minutes. After that,